آپ جو بائبل کی خلاف سٹیٹمنٹس دیں گے تو وہ پھر اس بات پر پورے نہیں اتر سکتے. موقع ملے گا. ہاں ملے گا آپ کو اینڈ میں ملے گا موقع. تو ابھی یہ تھا کہ دونوں طرف سے 15 بلکہ 20 منٹ پھر سے ریبٹلس کے لیے بھی یوز ہو چکے ہیں. ابھی جو 5 منٹ کی یہ تھی کہ آپ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 5 منٹ 10 منٹ استعمال کریں گے جس میں آپ ساری باتوں کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی نیا سوال نہ کریں اور پچھلوں کا جواب ہی دیتے ہیں. جی بات ہو رہی تھی وہ نبی کی، وہ روح حق کی بات تو خیر انہوں نے نہیں کی، چلو وہ نبی کی بات ہو رہی تھی. سوال یہ ہے کہ میتھیو بھائی نے یہ کہا ہے کہ وہ نبی جو ہے اس کا تذکرہ 20ویں آیت سے بعد شروع ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یا تو میتھیو بھائی صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر یہ بائبل ریفرنس بائبل والے یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں میں سے سارے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. انہوں نے جو وہ نبی کے اوپر حوالہ دیا ہے وہ دیا ہے استثناء 18 15 و 18 فقرہ نمبر 15 و 18 20 کا تو حوالہ ہی نہیں دیا انہوں نے. معلوم ہوا کہ ریفرنس بائبل والے جو ہیں ظاہر ہے یہ پوری ایک تنظیم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تذکرہ 15 و 18 پاکستان بائبل یہ وہ نبی کا تذکرہ جو ہے یہ 15 کا 18 کے اندر ہے. اچھا باقی رہ گئی یہ بات باقی رہ گئی یہ بات میرا خیال میں وہ ظاہر ہے میتھیو سے زیادہ ہی قابل ہوں گے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا. چلو کرتے بات اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ کیا اچھا جی دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نبی گستاخ بن کر یہ تو وہ نبی سے مراد ہے وہ 20ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ وہ واقعی نبی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے نبی کی بات ہو رہی ہے، جھوٹے نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ اس پر غور کریں. یہ سچے نبی کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات کہے جو جھوٹا نبی ہے اس کو نبی کہنا ہے اللہ نے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک بات نہیں کی نبی وہ بذات خود اپنی طرف سے کر دے تو ٹھیک ہے وہ سزا کا مستحق ہے. یہ قرآن مجید نے بھی اصول بیان کیا سورۃ الحاقہ کے اندر. یہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر یہ پیشین کوئی موجود ہے جو یہاں پر ہے. یہ ساری آیات اسی ایک نبی کے بارے میں بیان ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اگر کوئی سچا نبی اللہ کا نام لے کر جو ہے کوئی بات ایسی کر دے جو اللہ نے نہیں کی وہ واجب القتل ہے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی یہ بات کی ہے، سورۃ الحاقہ کے اندر یہ بات موجود ہے. دوسری بات آگے انہوں نے کہا ایک منٹ سورۃ الحاقہ کا حوالہ دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں جو کہا ہے نا کہ وہ نبی ہاں وہ نبی وہ جھوٹے نبی کے بارے میں وہ جھوٹے نبی کے بارے میں جھوٹے نبی کے بارے میں اس کا جواب جھوٹے نبی کے بارے میں تو یہ ہے ہی نہیں. نہ تو یہ بائبل کہتی ہے اور نہ ہی یہ طریق بتاتی ہے کہ یہ وہ نبی والی بات جو ہے یہ جھوٹے نبی کی بات ہے. اگر یہ جھوٹے نبی کی ہوتی تو حضرت یوحنا کہہ دیتے بھائی وہ نبی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، وہ تو جھوٹا ہوگا. بات تم جو جن کے منتظر ہو وہ تو سچوں کا بندہ ہمیشہ سچوں کا منتظر ہوتا ہے، جھوٹوں کا تو منتظر ہی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی جھوٹے نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ سچے نبی کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہاں پر ہے کہ ہاں جی وہ غیر معبودوں کے نام پر جو بات کرے گا واقعہ گراہیق جو قطعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے. کوئی دلیل پیش کریں آپ اس کے حوالے میں اس کے حوالے یار میں کتابیں نہیں لے کر ٹھیک ہے میں آپ کو مطلب ہے کہ حوالے دے دیتا ہوں آپ ان کو پڑھ لیں. مطلب اس سے متعلق ہاں جتنی وہ ساری کمزور ہے کوئی ثابت نہیں، مطلب وہ ضعیف ہے بالکل کمزور نہیں ہے. واقعہ گرانیق جو ہے واقعہ گرانیق ہرگز ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے. آپ اس کے لیے جو ہے اگر تفصیل جاننا چاہتے تبیان القرآن ایک تفسیر کی کتاب ہے، آسن البیان تفسیر کی کتاب ہے، اس طرح تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی. یہ اسی طرح جو ہے آپ کو یہ واقعہ جو ہے اچھا آپ مجھے ویسے ایک کوئی فگر دیں رف فگر کہ کتنے سورسز آپ پیش کر سکتے ہیں جن کے مطابق اس واقعہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یا پیغمبر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فگر تو میں نہیں کوئی رف سائڈ ایک منٹ بھائی مطلب یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے صرف 2 بندے ہیں، 2 تاریخ دان اس کو بیان کرنے والے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ان 2 کے علاوہ جتنے بھی تاریخ دان ہیں کوئی بھی اس کو بیان کرنے والا نہیں ہے. ان کے نام جنہوں نے اس کو بیان تبری ہے اور ابن سعد ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی نہیں بیان کر. اور پھر ان کی بھی جو سند کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ صرف ایک مطلب ہے کہ مشہور ہو گیا انہوں نے بیان کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے.
वो किताबों वालों ने भी ये नहीं कहा कि ये वाकया सही है। फिर भी कोई रफ सा आइडिया तो नहीं कि कितने आप यार इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे जो इस वाकया को कोड नहीं करते। अब इसमें सिर्फ बात रहेगी कि क्या अल्लाह अच्छा खुदा है। दूसरी बात मबूद अच्छा खुदा है। दूसरी बात कि पैगंबर इस्लाम ने जो बातें की है वो जाहिर है मबूद अल्लाह के नाम पर बातें की हैं, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। तो ये गैर मबूदों वाली जो बात है वो तो कतन साबित नहीं है। चलिए जी, आपके पास 10 मिनट का टाइम है। अच्छा जी, इन्होंने कहा अपनी एक रिबटल्स वाले सेशन में कि पैगंबर इस्लाम सिर्फ अरबियों के लिए नहीं थे, वो पूरी दुनिया के लिए थे। और मैंने जो क्लेम किया था मैं उसके लिए आपको कुछ बता दूं। सूरह नाम 6 सूरत उसकी 92 नंबर में आयत है, 92 नंबर आयत में लिखा है ना मादर अभी आपका टाइम मतलब रुकेगा। इसके लिए बात ये है कि ये बात होगी कि वो सिर्फ अरबों के लिए नबी है, क्योंकि ये खास कर रहे हैं और खास करने के लिए अलग लफ्ज होते हैं। ये बात याद रखिए हर जुबान के अंदर। नहीं सुन, मैं मतलब बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। उसके अंदर अगर ये लिखा हो कि वो अरबों के लिए है, इसका ये मतलब नहीं कि गैर अरबों के लिए नहीं है वो। अच्छा चलिए, क्यों अगर ये लिखा हो कि वो सिर्फ अरबों के लिए, हाँ फिर मैथियों की बात नहीं सुन, उनका टाइम है, सुन लें कि उनका टाइम मैं ज़ाया नहीं कर रहा, अपनी तरफ से नहीं कहेंगे वो नहीं, तो जो भी बात करेंगे मैं आपको बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि अगर ये बात होगी फिर उनकी बात जल्दी से पढ़ो ताकि सूरह नाम 6 सूरत उसकी 92 नंबर आयत में लिखा है, तुम मक्के और उसके आसपास के लोगों को आगाह करो। मक्के और उसके आसपास के लोगों को, सारी दुनिया को नहीं। फिर सूरह शोरा सारी एक मिनट सुनिए, मेरी गलत बयानी कर रहे हैं ना, गलत बयानी तो ना मेरी चलो पूरी पढ़ो जी, पूरी आयत पढ़ो जरा। अभी तो 10 पढ़ी हैं यार, ये तो पहले तो घबरा नहीं घबराए नहीं यार, गलत पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हमने जो कुछ आपने बाइबल से बयान किया हमारे दिल में है कि वो गलत है, हम बोले बिल्कुल बोले आप तो नहीं बोले, नहीं आप ही हमें बोलने देना जो आप नहीं ओहो यार ये इस जो पे टाइम आप है वो इस तरह का है। एक आयत पढ़े तो पूरी पढ़े, पूरी पढ़े पूरी पूरी पढ़ लेते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए पूरी नहीं पढ़ रहा, बात वही है। देखो सर सब्जेक्ट बदल जाता है आगे जाके, आपको पता ही है। चलेंगे सूरह शोरा 42वीं सूरत उसकी 7 नंबर है। और इसी तरह तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम बड़े गांव यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग इसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको रास्ता दिखाओ। सूरह कस्सस 28वीं सूरत 46 नंबर आयत में लिखा है, तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया। सूरह सजदा में दूसरी आयत में, सूरह सबा 44वीं आयत में भी यही लिखा है। फिर उसके बाद 13वीं सूरत और उसकी 7वीं नंबर आयत में हमें एक म्यार दिया गया कि हर कौम के लिए एक नबी होता है, हर कौम के लिए एक नबी होता है। सूरह इब्राहिम उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है, और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जुबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम खुदा खोल खोल कर बता दे। पहली हवाले में ये बताया गया कि हर कौम की तरफ एक नबी होता है, दूसरे हवाले में ये बताया गया कि उनकी जुबान बोलने वाला ही होता है। आगे अगर आप देखें सूरह जुम्मा उसकी दूसरी आयत तो लिखा है, वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजा। में जो लफ्ज है में, ये सिर्फ उनके लिए है, उन्हीं के लिए, अनपढ़ों में उन्हीं के लिए पैगंबर बनाकर भेजा। लिहाजा इन सारी आयतों के मुताबिक जो है ये हजरत मोहम्मद सिर्फ अहले कुरैश और उसके मक्का के इर्द गिर्द के जो इलाके थे उनके नबी थे, सारी दुनिया के नबी नहीं थे। उसके बाद फिर आपने जो बात की जी, इसमें लात में ना तुझा वाला जो है कोई वाकया नहीं था, और अल्लाह जो है वो एक बुत का नाम नहीं था। इसके ये इन्होंने बात तो कर दी लेकिन उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया इसके लिए। मतलब कि आपको सबूत पेश करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि जो अल्लाह बुत है, ये जो मैंने बात की है इसके ये बात सच्ची नहीं है, फजूल बात है। आपको ये साबित करना चाहिए था कि बात फजूल है। और जब मानिद की इन्होंने बात की तो उसमें सिमिलैरिटीज जो हैं, यूनिक सिमिलैरिटीज कोई ऐसी नहीं थी जिनकी वजह से पैगंबर इस्लाम को कहा जाए कि मूसा की मानिद नबी थे। ठीक है, दूसरी बात जो इन्होंने इसमें कही जी वो ये कहा जा रहा है कि मूसा के जैसे मौजज़ात नहीं दिए, लेकिन अगर आप सूरह नाम वाला हवाला पढ़ लेते तो आपको पता लगता वहाँ पर लिखा है कोई निशानी नहीं दी गई। वहाँ पर ये नहीं बात हो रही कि सूरह नाम उसकी 37वीं आयत में लिखा है। और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं हुई, कोई निशानी। वो मूसा वाला हवाला तो सूरह कस्सस का है। नहीं ये अच्छा बस मुसलमानों की बात है जी, ये पैगंबर इस्लाम को कहा जा रहा है। चलो जिसने भी कहा कुरान शरीफ में दर्ज। उसके बाद जो इन्होंने मददगार वाली बात की, देखें जब
जब भी बात हो रही है रूहुल कुद्स की या रूह हक की, तो उससे मुराद रूह हक या रूहुल कुद्स से मुराद हमेशा रूहुल कुद्स ही है। ये कोई दो अलग अलग बातें नहीं है। और जो आपने कहा जी आप इन्होंने उधर से उठाकर बातें बता दी, तो जो आपने खुद हवाला पेश किया था उन्हीं उसी में लिखा हुआ है कि वो मेरे नाम को जलाल देगा। पैगम्बर इस्लाम ने किसी भी तौर से जलाल नहीं दिया हजरत ईसा के नाम अंदर ये बात नहीं। एक मिनट चलो, जो मैंने बात की उसके अंदर ये बात नहीं है। खबर शीशा को खत्म नहीं कर नहीं, दें। ये गलत बयानी नहीं, मैं क्या खत्म कर रहे हैं तो गलत बयानी हाँ ना जी, करें। वो आप लिख लें कि गलत बयानी लिख लें, अच्छी बात है। आप चलें गलत बयानी यहाँ पे लिख लें। ठीक है। अच्छा चलें, इसके साथ ही आज की जो गुफ्तगू है काफ़ी हेल्प रही है, जो कि हमारे मौलाना ख्वाब रशीद साहब हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से खूबसूरती से केस को प्रेजेंट किया है। तो इसी तरह भाई मैथ्यू ने भी अपनी तरफ से उन बातों का जवाब देने की कोशिश की है और उसको बयान करने की कोशिश की है कि हम मसीही उसको किस तौर से समझते हैं, और उन्होंने भी बताया कि हम इसको किस तरह से समझते हैं। मैं समझता हूँ कि आज जितनी भी बातचीत हुई है सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमारे दरमियान ज़ाहिर इख्तलाफात तो हैं, दीनी मुस्लिम और दीनी क्रिश्चन, इसीलिए हम अलग हैं। और बात यह है कि हम अच्छे तरीके से बैठ के बात करने के काबिल हुए, और मैं समझता हूँ कि शाह साहब की ये बड़ी काविश है कि हम बैठें, और उन्होंने हमेशा हमें मतलब बहुत मुनासिब तरीके से हमें हैंडल किया और हमें इज़्ज़त दी है, और हम भी रिलैक्स फील करते हैं भाई ख़बर शीट के साथ और भाई बिशारत के साथ।